Good morning, student. Today, first online class, the related subject of the physical education, the chapter number first, planning in sports. In planning in sports, the second topic is the tournament. Tournament. What is a tournament? The very important question. What is a tournament? A tournament is a competition involving a relatively large number of the competitors, all participating in a sports or games. More spec, uh, specific, especially the term may be used in the either of two overlapping sense. Once or more competitions held in at the single views and the concentrate into a relatively short time interval. This is a definition of the sports. Importance of tournament. There are the six type of the importance of the tournament. Number one, development of the sports skill, propaganda of the sports, helpful in the selection of player, development of the national and international integrations, development of the social qualities, source of the recreations. Importance of the tournament. Tournament are very important in the field of the sports. The tournament are important not only to the player but to the coaches and physical education teachers also. The importance of tournament is described. The six type of the इम्पोर्टेंस और भी और इम्पोर्टेंस है हमारे पास जो लेकिन हमारे पास जो बुक के अकॉर्डिंग है वो डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स स्किल नंबर वन डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स स्किल्स by participating in the tournament sportsmen developed various skill of sports. The maximum number of participation in the tournament not only develop technical skills of the sports but also technical skills. They show marked improvement in the game. These are development of the sport skill. Propaganda of sports. What is the propaganda? Propaganda is a publicity. Publicity. The tournament are helpful in the publishing the sports. When a tournament of a new sport is organized,
publishing the sports when a tournament of a new sports is organized, spectators come know about that sports. Number three, helpful in the selection of player. Helpful in the selection of player. The third point of the importance of tournament. In the helpful in the selection of player in a tournament, good player can be selected easily by observing their performance in a tournament. The player who give a good performance can be selected for upper level tournament. So a tournament is an appropriate way to select a good team of the player. The 3 point. Number 4 point, development of the national and international integrations. इसमें क्या है? In this point, sports tournaments are helpful in the developing national and integrations as well as international unity and brotherhoods. A tournament is one of the best means by enhancing international peace. Number 5 point, development of social qualities. Development in the social qualities, social traits such as the tolerance, sympathy, cooperations, coordinations, brotherhood, friendship, disciplines are developed among participant through sports tournament. Number 6 point, very important for importance, source of the recreations. Sports tournament provide ample recreations to the spectators. So at a tournament is a good source of recreations. A tournament is complete. Importance of tournament, the 6 type of tournament, and after then next topic is the type of tournament. There are the 4 type of the tournament: knockout tournament, लीग टूर्नामेंट को हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं. नंबर 3, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट एंड चैलेंज टूर्नामेंट. But very important for the syllabus, the knockout tournament and league round robin tournament is very important. So what is the knockout tournament? What is the league tournament? Knockout tournament. Most of the tournament are organized on the basic of knockout. In this type of tournament,
A team which is one defeated automatically get eliminated एलिमिनेट हो जाती है टीम। अगर जब नॉकआउट में जो है एक मैच खेलने के बाद अगर जो टीम हार जाती है वो एलिमिनेट हो जाती है फ्रॉम द टूर्नामेंट, मतलब टूर्नामेंट से हम वो टीम बाहर हो जाती है। ओनली द विनिंग टीम कंटिन्यू इन द टूर्नामेंट। फॉर एग्जाम्पल, in the tournament, knockout tournament, 4 teams participate in the knockout tournament. So first, write down there are the four team income. Term 1 first round and term 2 second round. 4 टीम अगर होगी तो 2 राउंड्स खेले जाएंगे। ये कैसे हैं ये मैं आपको पिक्चर में बताऊंगा किस तरह से होगा। तो टीम लिखेंगे ए बी सी डी, और ए बी का जो मैच है वो ए का बी से कराएंगे और सी का डी से। इनमें से जो टीम जीतेगी वो अंदर रहेगी सेकंड राउंड में, और जो टीम हार जाएगी वो बाहर हो जाएगी। एंड बी इज अ विनर, डी इज अ विनर, और दोनों का मैच जब होगा तो थर्ड राउंड का जो मैच होगा वो फाइनल मैच होगा 4 टीम में। ये इतना समझिए, फिर मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे जो है पूरा फिक्सचर समझाऊंगा। इन द टीम राइट डाउन फर्स्ट A, B, C and D. In the first round, team A and team B as well as team C and team D को वैसा ही लिख देंगे। Their matches. If team B and D become the winner of the first round and team B and D get opportunity to play in the second round, team A and team C will be eliminated from the knockout tournament. Finally, if D team is the win, then it is declared the winner of the tournament. This is a knockout tournament. Advantage of the knockout tournament. What is the advantage of the knockout tournament? कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि नॉकआउट टूर्नामेंट का क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज भी जानना चाहेंगे। तो पहले हम एडवांटेज को देखते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज? द नॉकआउट टूर्नामेंट आर लेस expensive because the team that get defeated is eliminated from the competitions. ये इसके जो है फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट इज द नॉकआउट टूर्नामेंट इज हेल्पफुल इन द enhancing the standard of sports, because each team try to give the best performance to avoid defeat. 2 points हमारे इसमें, there are the 4 point and 3 point is the owing to less number of the matches, the tournament get completed in the less time. Number 4, minimum number of officials are required in the organizing
such type of the tournament. इसे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज नॉकआउट के किसी भी चीज के जो है एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो दोनों चीजों को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसी तरीके से लीग टूर्नामेंट का जो है उनकी भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट, द डिसएडवांटेज ऑफ द नॉकआउट टूर्नामेंट। There are the more chances of the weak team to enter the final round. कई बार ऐसा हो जाता है कि जो कमजोर टीम होती है वो फाइनल में पहुंच जाती है, ये नॉकआउट का नतीजा है। कई बार ऐसा नहीं होता है, लेकिन कई बार टीम अपनी गलती से हार गई अच्छी टीम, और जो बेस्ट टीम होगी, जो हल्की टीम होगी, वो फाइनल राउंड में पहुंच जाएगी। तो क्या इंटरेस्ट आएगा फाइनल देखने में? नहीं आएगा ना। तो लेकिन लीग मैच में ऐसा नहीं होता है। लीग मैच में जो है कम से कम एक टीम जो है सभी टीमों के साथ एक एक बार खेलती है। नॉकआउट में तो पहला मैच होगा और टीम बाहर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं डिसएडवांटेज का। There may be many chances of the eliminations to good teams in the first and second round, so good team may not reach the final round. And number 3 point, spectators जो दर्शक हैं हमारे may lose interest in the final match if weak team reach in the final round. जो कमजोर टीम होती है वह कई बार जब फाइनल में पहुंच जाती है तो मैच में इंटरेस्ट नहीं होता है, दर्शक इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, उनको मजा नहीं आता है कि फाइनल में जो है हल्की टीमें पहुंची हैं, अच्छी टीमें नहीं पहुंची। कई बार गलतियां हो जाती हैं मैच के दौरान, अच्छी टीमें हार जाती हैं। तो उसी का डिसएडवांटेज जो है, जो एडवांटेज जो है उन्हें वीक टीम को मिल जाता है, और वीक टीम जो है फाइनल में पहुंच जाती है। आइए, इतना हमारा टॉपिक कंप्लीट है। नॉकआउट के जो है एक तो उसके बारे में बताया, 4 टीम के बारे में, एंड उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये एग्जाम के लिए आप तैयार कर लें। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन टूर्नामेंट से भी आ सकता है, व्हाट इज टूर्नामेंट। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज अ टूर्नामेंट, और कई बार आ जाता है कि टाइप ऑफ द टूर्नामेंट। अगर टाइप ऑफ द टूर्नामेंट तो नॉकआउट के बारे में डिफाइन कीजिए, और अगर नॉकआउट के बारे में डिफाइन कीजिए तो कई बार 3 मार्क्स में जो है बता दिया जाता है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताइए। तो एक पैकेजिंग क्वेश्चन बन जाता है, 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का। तो व्हाट इज द टूर्नामेंट, डिफाइन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द नॉकआउट टूर्नामेंट। तो इसको तैयार कर लें। और अब तो आप लोग घर पे हैं तो कोशिश कीजिए कि चैप्टर्स को रीड करें, कई बार पढ़ें, 1 से 2 बार पढ़ें, 2 से 3 बार पढ़ें, 3 से 4 बार पढ़ें, तो खुद ब खुद आपके माइंड में सेट हो जाएगा। लीग और राउंड रोबिन टूर्नामेंट। League tournament is also called round robin tournament. Mr. Berger was the first person to imagine the league tournament, and owing to the tournament is also Berger system tournament. According to the tournament, each team play with the every other team once. If it is a single
league tournament, if it is a down double league tournament. Each team play with every other team in a twice. In this type of tournament, every team play with every other team irrespectively of victory of defeat. It can be called the best type of the tournament because it provides maximum number of the opportunity to the teams to display their best performance. In fact, there is no eliminate of chance and the real number is picked up easily at the end. बर्जर सिस्टम बोलते हैं। मिस्टर बर्गर ने इसको जो है बर्जर ने इसने सिस्टम को बनाया था लीग की टूर्नामेंट को, और लीग टूर्नामेंट में एक टीम एवरी टीम के साथ वन टाइम्स खेलती है अगर वो सिंगल लीग टूर्नामेंट है। देयर आर द टू टाइप ऑफ द टूर्नामेंट, सिंगल लीग टूर्नामेंट, डबल लीग टूर्नामेंट। बट अगर एक टीम प्रत्येक टीम के साथ दो बार खेलेगी तो डबल लीग टूर्नामेंट। आइए उसको भी हम समझते हैं, और इनका फॉर्मूला भी है। सिंगल लीग का फॉर्मूला है n-1/2 एंड डबल लीग का है n-1। सिंगल लीग टूर्नामेंट, देयर आर द टू टाइप ऑफ द लीग टूर्नामेंट विच इज मेंशन्ड बिलो, जो नीचे दिए गए हैं। सिंगल लीग टूर्नामेंट, डबल लीग टूर्नामेंट, दोनों को मैं बता देता हूं आपको। सिंगल लीग टूर्नामेंट, single league tournament, in a single league tournament every team play with every other teams once, and the number of the matches is determined with the help of the following formulas. Determined with the help of the following formulas: n-1/2. There are the n here. N means the number of the team taking part of the tournament. For example, if 7 teams are taking part in a tournament, the number of the total matches that will be held in the, जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया था n-1/2, उसमें 7 टीम्स को रखना है। n-1/2 7 टीम्स अगर है तो n की जगह 7 आ जाएगा। n-1 7-1/2 इक्वल टू 21 मैचेस जो है सिंगल लीग टूर्नामेंट में होंगे। ये इसका फॉर्मूला है। कभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए, एमसीक्यू टाइप भी क्वेश्चन आ सकता है, वो सपोज आपको दे दें कि सिंगल लीग टूर्नामेंट का जो है फॉर्मूला क्या है, और उन्होंने जो है एक तो ये वाला दे दिया n-1/2, एक उन्होंने डबल लीग वाला डाल दिया उसमें एमसीक्यू के लिए n-1, ठीक है। तो ये है एक फॉर्मूला। अगर ये भी डाल सकते हैं वो लोग कि और कुछ 2 फॉर्मूले और वो डाल दें अपनी तरफ से, उसमें कुछ चीजें हटा दें, कुछ जोड़ दें, तो उसमें हम टिक उस पे करना है जो सिंगल लीग टूर्नामेंट का फॉर्मूला है। तो n-1/2 इसको याद भी करें। फिक्चर जब हम बनाएंगे तो बहुत सारी चीजें हमें याद करने के लिए होंगी। और इसी तरीके से जो है कई बार ऐसा होता है कि अगर
देर आर द 7 टीम्स ना, तो अगर 12 टीम्स आती हैं, अभी जैसे आईपीएल चल रहा है उसमें 8-9 टीम्स आ रखी हैं, तो वो जो आईपीएल मैच जो है वो लीग टूर्नामेंट करवा रहे हैं। और लीग कौन सा टूर्नामेंट है? जो डबल लीग टूर्नामेंट है, तो कम से कम उसमें 74 के आसपास मैचेस होंगे। उसमें फॉर्मूला लगेगा डबल लीग का, n-1 अपॉन, नहीं, n-1। तो उसमें हम लोग जो है फॉर्मूला जब हम लगाएंगे, सपोज कि अगर आईपीएल सिंगल लीग टूर्नामेंट है तो फॉर्मूला लगेगा n-1 अपॉन 2, मतलब 12 टीम्स अगर हैं तो 12 इंटू 12-1 अपॉन 2, जो भी आएगा उतने मैचेस जो है सिंगल लीग टूर्नामेंट में होंगे। अब हम देखते हैं इसके बाद डबल लीग टूर्नामेंट। डबल लीग टूर्नामेंट, डबल लीग टूर्नामेंट का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक टीम जो है सभी टीम के साथ कम से कम 2 टाइम्स जो है खेलेगी, और उसका फॉर्मूला भी लगेगा n-1। और इसमें क्या है, इसमें डबल लीग टूर्नामेंट में, in the double league tournament, every team play with the other teams in twice. Their number of the matches is determined with the help of the following formulas. क्या है फॉर्मूला? With the help in the following formula, n-1, okay. अगर 9 टीम आती हैं, 9 teams are taking part in the double league tournament, तो total number of the matches that will be held in the given below कैसे है? n-1 अपॉन 2 नहीं होगा। तो इसमें क्या है कि n इंटू n9 है, 9 इंटू 9-1 इक्वल टू 8, मतलब 72 मैचेस जो हैं इसमें कंडक्ट होंगे डबल लीग टूर्नामेंट में। एडवांटेज भी देख लेते हैं इसके। एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, क्वेश्चन कई बार आ ही जाता है। और क्वेश्चन एग्जामिनर खुद इस तरह से बनाते हैं कि आप लोग उन चीजों को भी देखें जो चीजें आप लोग सोचते हैं कि एग्जाम में नहीं आएंगी। कई बार आया ऐसा हो जाता है, डिसएडवांटेज पूछ लिया तो क्या लिखेंगे आप, अब एडवांटेज पूछ लिया तो क्या लिखेंगे। तो एडवांटेज ऑफ द लीग टूर्नामेंट, द फॉलोइंग द एडवांटेज ऑफ द लीग टूर्नामेंट, every team get maximum opportunity to show its efficiency or performance. Only strong of the deserving team get victory in the tournament. ये इसका फर्स्ट सेकंड इसके बारे में बताया उन्होंने। अब थर्ड क्या है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स कैन बी मेड मोर पॉपुलर थ्रू लीग टूर्नामेंट owing to maximum number of the matches. 3 पॉइंट इसके में, यस 4 भी हैं। स्पोर्ट्स एंड गेम्स कैन बी मेड more popular through league tournament owing maximum number of the matches. In such type of the tournament, number 4, the sport officials do not face any difficulty while selecting to determining the opportunity appropriate players or teams. They have to enough time to watch the efficiency and performance of the player. ये इसके 4 पॉइंट हैं। अब नंबर 5 और 6 भी हम देखते हैं। नंबर 5 पॉइंट होगा, अ टीम नीडेड नॉट वेट टू विन अगेंस्ट द अदर टीम फॉर प्लेइंग अ मैच। नंबर 6, ample number of the opportunity are available to the player in improve their performance. Number 7, the spectators जो दर्शक गण हैं, ऑडियंस जो है, also get good opportunity to the watch the games for many times and many days. उन टीम को बार बार देखती है, हर दिन देखेगी जब उनके मैचेस होंगे, क्योंकि एक टीम जो है सभी टीमों के साथ नंबर ऑफ टीम के हिसाब से खेलेगी। और इसी के साथ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ऑफ द लीग टूर्नामेंट,
इट्स कॉस्ट मोर, इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत अधिक होती है, बहुत ज़्यादा जो है। मैचेस खेलेंगे तो तीनों टाइम का एक्सपेंसेस, खाने का भी है, रहने का है, पानी है, और कोचेस का भी है, और रेफरीज भी हैं, उनका भी पूरा एक्सपेंसेस होता है। जहाँ पे रुकेंगे प्लेयर्स उनका भी एक्सपेंसेस जो है पेड करना पड़ेगा। जो ऑर्गेनाइजर, जैसे आईपीएल के मैचेस हैं, बड़े मैचेस हैं, इनकम भी बेस्ट है लेकिन एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, सब कुछ देखना पड़ता है लीग टूर्नामेंट में। आइए सेकंड देखते हैं। इट्स कॉस्ट इज मोर एंड इट्स रिक्वायर मोर टाइम्स। द टीम कमिंग फ्रॉम फोर एंड वाइड जनरली face more problems, become such tournament, waste their time and money। लेकिन जो पॉपुलर गेम है, जैसे कि आईपीएल है, फुटबॉल है, फीफा है, लॉन टेनिस है, और इस तरीके से जो गेम्स हैं, इनके तो जितनी भी जो इसकी पब्लिसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा इनकम भी होगी। ये भी है, इनकम वाले गेम जो हैं वो लीग टूर्नामेंट पे हम खेल सकते हैं और खिला भी सकते हैं हम लोग, और मतलब इनकम भी बहुत होगी, जिससे जितने गेम होंगे उतना ज़्यादा इनकम भी होगी। जो पॉपुलर, जो पब्लिसिटी इसकी सबसे ज़्यादा है, या पॉपुलर गेम जो है, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, लॉन टेनिस है, और WWF रेसलिंग के हैं, टाइकोंडो वगैरह जो है, ये अच्छे मैचेस हैं, बड़े मैचेस। और बॉक्सिंग भी कई बार लोग पसंद करते हैं देखना। इसमें एक पॉइंट और देखते हैं। इट्स रिक्वायर मेकिंग मोर अरेंजमेंट फॉर द स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स एंड टीम्स। Morale of the most of the team become low due to their the defeat again and again. In the such situations, these teams are unable to show good performance. That is why the spectators are avoid of whole wholesome recreations। हर समय जो है वो एंजॉय करते हैं और खुश होते हैं, मैच देखते हैं, जो कि लगातार ये मैचेस चलते हैं। आइए, टॉपिक्स तो हमारे कंप्लीट हो गए। टूर्नामेंट के जो है, मैं दो टूर्नामेंट, टू और टूर्नामेंट्स हैं जो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है, चैलेंज टूर्नामेंट है, इसको आप लोग देख लें, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो नॉकआउट लीग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्चर्स। फिक्चर को ड्रॉ करने की क्या प्रोसेसिंग है और कैसे हम करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको जो है इसके बारे में एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम इसे बोर्ड पे यूज करते हैं, बोर्ड पर हम इसको समझाएंगे। फिलहाल टुडे माय क्लास इज कंप्लीट। द फर्स्ट क्लास और द फिजिकल एजुकेशन, कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप लोग जरूर देख लें। व्हाट इज द वर्ड ऑफ टूर्नामेंट? टूर्नामेंट का क्या मतलब है, उसके बारे में मैंने आपको बताया, और आप उसको बुक में एक बार पढ़ें, समझें, और कॉपी में करना है। मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा इसमें, असाइनमेंट जो मेरा रहेगा, असाइनमेंट फर्स्ट इन 2021-22। और व्हाट इज नॉकआउट टूर्नामेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सीडिंग, और व्हाट इज द सीडिंग्स, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। और व्हाट डू यू मीन बाय द लीग टूर्नामेंट, लीग मैंने आपको बता दिया है, उसकी डेफिनेशंस आप जो है, उसका मतलब, उसके जो डिफाइन है वो आप जरूर कॉपी में करें। व्हाट डू यू मीन बाय बाय आपको बाद में बताई जाएगी। सीडिंग, बाय, एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर द गिविंग बाय, ये भी आपको बाद में बताएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग, प्लानिंग का ये आप लोग कर लें, ये मैं आपको असाइनमेंट में दे दूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय द प्लानिंग? व्हाट इज द स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम? व्हाट इज द कंसोलेशन टूर्नामेंट? ये बाद में करेंगे, इसको जब मैं आपको बताऊंगा तभी आप लोग इसको करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपके लिए बना के रखूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि फर्स्ट चैप्टर से कम से कम, फर्स्ट चैप्टर के कम से कम 30 एमसीक्यू मेरे पास हो, जो मैं आपको बताऊं।
और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो 5 मार्क्स में है, वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट डू यू मीन बाय द नॉकआउट टूर्नामेंट? ड्रॉ द फिक्चर 21 टीम्स. 21 टीम्स का जो है नॉकआउट फिक्चर को ड्रॉ करना है. अब ये ड्रॉ जो है मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे. ये सब चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा इसमें. लेकिन ये आप लोग कर सकते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय द नॉकआउट टूर्नामेंट? एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द लीग टूर्नामेंट? देखिए इसमें क्वेश्चन आ रखा है, ब्रीफली मेंशन द एडवांटेज ऑफ लीग टूर्नामेंट. एक ये क्वेश्चन था, ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट टाइप ऑफ द लीग टूर्नामेंट. और डिसएडवांटेज भी पूछ रखा है कि ब्रीफली मेंशन द डिसएडवांटेज ऑफ द लीग टूर्नामेंट. तो आप इसको तैयार कर लें और क्वेश्चंस मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा. और आपकी कोशिश ये रहे कि एक कॉपी आप बनाएं सबसे पहले, उसमें क्वेश्चन जो मैं असाइनमेंट दूंगा उसको करना शुरू करें. और स्कूल जैसे ही खुलेंगे हम जो है आपकी कॉपी को चेक भी करना है और चेक भी मैं करूंगा. और ये ध्यान रखना है कि आप लोग को मैंने अभी पिछली बार जो सेशन किया था उसमें अधिकांश बच्चों ने, मेरे 100 असाइनमेंट थे, 102 असाइनमेंट थे, उन बच्चों ने 102 के 2 असाइनमेंट जो हैं उन्होंने किए हैं. उसका फायदा उनको प्रैक्टिकल एग्जाम में हुआ, बोर्ड के पेपर में भी हुआ और होगा भी, जो पेपर जो है रिटर्न का होगा. तो आप लोग कोशिश करें अपने पूरे असाइनमेंट करें, इंपॉर्टेंट है असाइनमेंट और वो करना है. और चेक भी हम लोग करेंगे. ओके, तो ठीक है फिर स्टूडेंट. ओके, माय टॉपिक इज कंप्लीट. थैंक यू वेरी मच. गुड डे.